Hi everyone. Thank you for joining in again. Hi Shabnam. So just let's wait. Let few more people joining there. So आज इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है सभी जगह पे. Hi Mrs. Shingora. Hi Falak. So guys hold on. पहले कुछ तो इशू आ रहा था. सर वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन अस इन लाइव. ही वॉज देयर. सो let me see what is the issue with him. Hi Pallavi. It's such a great to see you here, and sir is already here. Let me send him the request to go live. Yes, I can. If you accept my invite, you can go live. Yes. So finally. So, okay. First of all, sorry for this technical. No, glitch. that is I understand. Yeah. Most of the Finally, people we are are doing able to join. the first time. Okay. So because of that, am I audible? You are able to hear me? Yes, I can. Okay. Okay. Are you able to hear me? See me? So we can Yes. start the session. Yes. I can hear you. Is this just sorry for my? Is this possible from the laptop also? No, actually not. Okay. So I was So trying from the Instagram laptop. allows you to make mobile. I'm just for 2 minutes just to call him and make him join us. I am ending the session and joining. I think, Okay. sir, you are from the well. So because of that, मेरे bounce back. Now you are clear. हाँ. So let's use only one mobile. Okay. I am log out from my device, laptop device. Okay. Yes. So friends, such a renowned personality with us. He is Dr. Siddharth. He is a renowned nephrologist practicing in Surat time. And, he does specialize in disease treatment, but also in the transplant. I don't know my coming back to me. Am I audible to you, sir? Yeah, you are audible. But मुझे दो जगह से आवाज. You are audible. There is some echoing of the voice. I don't know why, but you are audible. Okay. Do you have Do I have? two devices on? No. Only one device. Am I now clear? Yeah. Yes. I think yes. I need to put my. Just do it quickly. Yes. Well, now, guys, it is.
Yes, sir. So with you, we want to know a lot of things. So let's start with the first question जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किडनी का एक्चुअल फंक्शन क्या है for a layman, what should he be knowing? Okay, so let us start. So basically, very good question. What is the functions of the kidney? Why we are talking? हम ये awareness talk क्यों कर रहे हैं? So a general thing which I have noted is that there is a very less awareness regarding the kidneys as compared to heart. लोगों को अपने कार्डियक के बारे में जितना अवेयरनेस रहता है, ब्रेन के बारे में जितना अवेयरनेस रहता है, किडनी के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है. So let me tell you, kidneys are really very important organ. Okay, so they are the two bean shaped organs. Just like अपनी fist बनाते हैं, वो approximate उनका size रहता है, maybe 9 centimeter or so, and they are paired organs and they are located at the back. Okay, and the main function of the kidneys is to keep our blood purified, is to remove all the metabolic waste products and the toxins. हम जो हर रोज खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, there is a generation of waste products. हमारे ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, जो हम यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम एक्सेट्रा टेक्निकल टर्म्स में जिनको हम मेजर करते हैं. सो किडनीज आर द ऑर्गन विच हेल्प अस टू प्यूरिफाई ब्लड. वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं. दैट इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द किडनीज. उसके सिवा देर आर लॉट ऑफ अदर एसेसरी हार्मोनल फंक्शंस विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ब्लड प्रेशर कंट्रोल. किडनी विल हेल्प इन कीपिंग ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल. किडनी से रेनिन, एंजियोटेंसिन एक्सेट्रा नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है विच विल हेल्प इन कीपिंग ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल. उसके सिवा अदर एसेसरी फंक्शंस किडनी के होते हैं खून बनाना, आरबीसी, हेमोग्लोबिन बनाना. सो किडनी हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड. There is another hormone known as erythropoietin which is secreted by the kidneys and it helps in making blood. इसके लिए आप लोगों का अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट हो, you must have heard कि उनको क्रोनिकली अनीमिया रहता है, हेमोग्लोबिन कम रहता है. That is due to that. In addition, another calcium metabolism. Kidney helps in making bones healthy, but we call as bone kidneys वालों को metabolic bone disorder हो जाता है. So this is another very important functions. It helps in calcium metabolism and vitamin D metabolism. Okay, so these are there are a lot of functions, but we cannot discuss all that functions in detail. Yes. But for a common public to know, the most important functions of the kidney is to keep our blood purified. उसके सिवा one more important function is to maintain fluid balance. हमारे बॉडी के अंदर पानी का प्रमाण का बैलेंस मेंटेन करती है. सो अनदर कॉमन ऑब्जर्वेशन सबका रहेगा, अगर आप बहुत गर्मी में रहते हैं, बहुत स्वेट होता है, तो अगर आपने पानी कम पिया होता है तो यूरिन का प्रमाण क्वांटिटी वुड बी लेस. ऑन द अपोजिट, अगर आप ठंडी में रहते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, तो यूरिन क्वांटिटी वुड बी मोर. सो दिस क्वांटिटी ऑफ द यूरिन इज मेंटेन बाय किडनी, बैलेंस इन द बॉडी. सो किडनी विल ट्राई टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, अपने शरीर में जो पानी का प्रमाण होता है, दैट इट विल हेल्प इन मेंटेन. So these are the few important functions. So ये इतने important functions हैं, और ये कैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं? What causes the disturbance in them? Okay, so ये इतने सारे important functions हैं. How do they that disturb? और in another language, अगर मैं questions को deeply improve, तो kidney failure क्यों होता है? The functions will get disturbed only when the kidneys fail, or in other kidney doesn't work up to the mark. किडनी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती, तो ये सारे फंक्शंस धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाते हैं. क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, वेस्ट बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, पानी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है. सो अब आज के टाइम पे बात करने जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जिससे किडनी बिगड़ती है, दैट इज डायबिटीज. ओके, शुगर, डायबिटीज मेलाइटस. सो देयर इज अ रजिस्ट्री कॉल्ड एज सीकेडी रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसके अंदर बेसिकली सब कॉजेज आते हैं. तो इन इंडिया आउट ऑफ 10 किडनी पेशेंट, 4 किडनी पेशेंट्स आर ड्यू टू डायबिटीज. एंड हमारी फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको शुगर है ही है.
सो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रिलेवेंट टॉपिक को जिसके लिए हम सबको ये चीज के बारे में अवेयरनेस और पता होना चाहिए. सो वन इंपॉर्टेंट कॉज इज डायबिटीज. ओके, दैट इज द वन. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज will disturb kidney and these functions will get disturbed. Yes. उसके सिवा if we talk about another reasons, then hypertension, blood pressure. Again it is equally common. हमारे फ्रेंड्स में, फैमिली सर्कल्स में, ऊपर नीचे किसी ना किसी को ब्लड प्रेशर होगा ही होगा. As I again told, it's not blood pressure but uncontrolled blood pressure. जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं होता, उनको again will kidney get disturbed and all these functions will get disturbed. उसके सिवा renal stones disease, urinary tract infections, there are so many congenital disorders and there are a lot of other causes. But to us on this platform to remember common thing, we have to remember diabetes and we have to remember blood pressure. These are the two things जो day in and day out हमारे किसी ना किसी जानने वालों को, पहचान में, फैमिली को, फ्रेंड्स को होता ही होता है. और इसके लिए ये अवेयरनेस रिगार्डिंग किडनी डिसीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. It is actually very important. I would like to share one incident. There was a patient coming from Mumbai to us to have a diet planning to control his diabetes. And he wanted to lose some weight because doctor advised. So he shared, मेरे 2 महीने में 10 किलो वजन बढ़ गया है. And when he was, stepping on the weighing machine, we saw a lot of edema. बहुत सारा पानी भरा हुआ था उसके पैर में. So I asked कि ये हमेशा रहता है? सिर्फ हाँ, थोड़े टाइम से है and थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है when I put उंगली and all. So it was a water retention clearly. So I asked to get his creatinine and renal function test done and all, and he was not even aware his kidney was functioning 20% only. And in an emergency he has to see a nephrologist in Mumbai who advised that soon you will be on dialysis. So he was a diabetic since like 15-18 years, never checked कि हमें एक नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत है या फिर एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की. He was taking the diabetes के लिए ट्रीटमेंट from a local MBBS doctor. So again, this is a very very common practical scenario which you are telling. Day in and day out हमको ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि फर्स्ट टाइम पता चला कितने लंबे से, बट that is the reason beginning I told कि किडनी की अवेयरनेस अभी बहुत कम है and we like really need to do a lot of work to make this awareness among local public. Yes. और इसीलिए we will talk further regarding how to prevent and what is the method of screening. I think in further session we will talk about that. Yes, I also want to know what are the symptoms. जैसे ये तो मैंने एक बताया कि water retention होती है. What are the other symptoms from which we can say कि yes, इनको शायद kidney affected है या compromised है. Okay. So now again questions come to what are the symptoms. किसी भी पेशेंट को पता कैसे चलेगा कि उसको किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है. So let me tell you कि जैसे डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर, किडनी डिसीज इज ऑल्सो ए साइलेंट किलर. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका वो जो पेशेंट बॉम्बे से आया था, जब तक उसको इडीमा आया और उसको सिम्टम्स डेवलप करे, हिज किडनीज वर फंक्शनिंग ओनली 20%. किडनी की ऐसी कैपेसिटी है कि जब तक 50% किडनी डैमेज नहीं होती, किडनी का कोई भी सिम्टम्स पेशेंट को नहीं आता है, पता नहीं चलता है. एंड दैट इज द रीजन प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिम्टम्स यूजुअली कम एट अ लेट स्टेज, और लेट स्टेज पे भी बहुत वेग सिम्टम्स आते हैं. क्या सिम्टम्स आते हैं? एक सिम्टम्स जो आपने बोला इडीमा, क्योंकि किडनी का एक बहुत फंक्शन है शरीर के अंदर पानी का बैलेंस रखने का, तो पानी भर जाता है. उसके सिवा सिम्टम्स में होता है वेग सिम्टम्स. मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम डिक्रीज एपेटाइट. किडनी वाले पेशेंट्स बोल रहे हैं कि मैंने बहुत दिनों से खाना कम कर दिया है, या मैं खाना नहीं खा सकता. वॉमिटिंग, नौसिया होगा उनको, फीलिंग ऑफ अनवेल होगा. अचानक से पेशेंट का बीपी बहुत बढ़ जाएगा. कोई भी पेशेंट अगर बोलता है कि पहले मेरा 1-2 साल पहले एक दवाई से बीपी कंट्रोल रहता था और अब 3-4 दवाई लेनी पड़ती है, देन वी हैव टू सस्पेक्ट कि उसको किडनी डिसऑर्डर तो नहीं आया है. स्किन पिगमेंटेशन, इचिंग ओवर द स्किन, ब्रेथलेसनेस, पेशेंट को कुछ भी काम करेगा तो सांस चढ़ेगा. ओके, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी. किडनी से हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो इजी फटीगेबिलिटी, फटाफट कुछ भी काम करेगा तो थक जाएगा. ओके, मेमोरी इंपेयरमेंट, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वगैरह उसको होता है.
फीलिंग ऑफ अनवेल, वेट लॉस, ओके, पेशेंट धीरे धीरे खाना कम करता है तो उसका वेट लॉस, मसल वेस्टिंग, ये सब होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट स्टेज पे सिम्टम्स डिटेक्ट होते हैं। सो दिस आर वेरी वेक सिम्टम्स एंड वी कॉल किडनी डिसीज एज अ साइलेंट किलर, and that is the important. More stress is on prevention, more stress is on early detection, more stress is on screening, क्योंकि एक बार पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप हुए, 50% से ज्यादा किडनी फंक्शन लॉस्ट हो गया, देन अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इट कैन बी ब्रॉट बैक। वो कभी भी हम उनको वापस नहीं ले आ सकते। एट द मोस्ट थेरेपी से हम उसको फर्दर प्रोग्रेशन अटका सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट फर्दर डैमेज, बट वंस द थिंग इज डैमेज, नेफ्रॉन्स एक बार डैमेज हो गए, under any circumstances it cannot be repaired. Okay. So kidney function एक बार declining start होता है, so ये कितनी जल्दी declining होता है? I mean, how is the speed of a kidney damage to kidney failure? Okay, so basically speed of kidney failure depends on the basic disease. अगर हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, जो 40 से 50% पेशेंट्स में होता है, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज रहती है, अनकंट्रोल मतलब बिल्कुल HbA1c मेंटेन नहीं रहता है, पेशेंट अच्छे से नहीं होता है, तो एवरी 10 ईयर पेशेंट लूज अप टू 8 to 10 GFR, किडनी फंक्शन डिक्लाइन, वी मेंटेन इन अ टेक्नोलॉजिकल टर्म वी कॉल एज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ओके, विच इज मेजर्ड बाय सीरम क्रिएटिनिन, एंड ऑन एन एवरेज हर साल 8 से 10 GFR डिक्लाइन होता है। अगर पेशेंट 50% पे डिटेक्ट हो रहा है तो इन अनदर 5 years 50 GFR डिक्लाइन हो गए, पेशेंट गोज टू RRT, रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में डायलिसिस कहा जाता है। दैट इज वन थिंग। ऑन द अदर हैंड, पेशेंट अच्छे से अपना शुगर मेंटेन करता है, अच्छे से नेफ्रोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट देता है, बहुत सारे प्रिकॉशंस है, नमक कम खाना, पेन किलर अवॉइड करना, एक्सेट्रा, जो हम आगे बात करेंगे, देन वी कैन डिक्रीज दैट डिक्लाइन इज GFR टू 2 to 3 ml per hour पर ईयर। जो 10 होता था वो 2 से 3 हो सकता है, तो वही पेशेंट की किडनी 10 साल एक्स्ट्रा चल सकती है और वो डायलिसिस डिले कर सकता है। राइट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार ही आपका GFR इतना लो हुआ तो आपको डायलिसिस लेना ही है। हाँ, नहीं, जरूरी नहीं है। एंड द पेस ऑफ डिक्लाइन के कितने साल बाद वो कितनी खराब होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट डिसीज, पेशेंट्स क्या मेडिसिन ले रहे हैं और पेशेंट कितना केयर ले रहा है, एंड दैट इज वेयर वी प्ले अ रोल। नेफ्रोलॉजिस्ट का मेन रोल वही होता है, दे प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ रेनल डिसीज। जो भी पेशेंट्स को स्टेज 1 या स्टेज 2 रेनल डिसीज है, उसको स्टेज 5 तक जाने के लिए वो स्लो करता है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। So there are a lot of medications जो लोग ऐसे ही पॉप अप करते like analgesics, right? So does that has any effect on kidney? Yes, very good point, and again very important point. So we are talking about analgesics like painkiller. Normal patients mean any healthy young patients without any comorbidity, उसके लिए पेन किलर इज ओके, ही कैन टेक। बट जो पेशेंट्स का किडनी कॉम्प्रोमाइज है, या पेशेंट्स हु आर मोर प्रोन फॉर रेनल फेलियर, हु आर द पेशेंट्स हु आर मोर प्रोन, डायबिटिक्स पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट, एल्डरली पेशेंट्स, ओबेस पेशेंट, फीमेल्स मोर देन 65, उनको एनर्जेसिक से किडनी डैमेज हो सकता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, अगेन अ कॉमन टेंडेंसी, लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग पेशेंट्स। एक बार किसी पेशेंट को कोई भी डॉक्टर ने कोई एनर्जेसिक लिया तो वो यूजुअली लाइफ लॉन्ग वो अपने पास रखेंगे, एंड दे कीप ऑन यूजिंग ऑफ एंड ऑन एज पर देयर कन्वीनियंट। अगेन डोज एंड ड्यूरेशन, अगर आप लंबे समय से पेन किलर खा रहे हैं, देन अगेन ऑल्सो इट्स वेरी वेरी डेंजरस, दैट विल डैमेज द किडनी। जो लोगों को ऑलरेडी किडनी डैमेज एस्टेब्लिश्ड है, उनके लिए स्ट्रिक्टली नो, वो लोग एनर्जेसिक बिल्कुल भी नहीं खा सकते। एंड इफ एट ऑल उनको कुछ जरूरत पड़ती है, देन दे आर सेफ पेन किलर्स लाइक पैरासिटामोल होता है, एनी डोलो 650 एक्सेट्रा, क्रोसिन वगैरह, या फिर कॉन्ट्रामोल नाम की ड्रग्स होती है, दैट कैन बी यूज्ड, व्हिच आर नॉट हार्मफुल फॉर द किडनी, बट दे कैन नॉट टेक नॉर्मल पेन किलर्स लाइक डिक्लोफिनेक, कॉम्बिफ्लिम, ऐसा वगैरह वो दवाई नहीं ले सकते। इसी के एसोसिएटेड एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, देयर आर सो मेनी अदर्स ओवर द काउंटर ड्रग्स, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ड्रग्स, जिनका कंटेंट पता नहीं होता। काफी बार उसके अंदर लीड, कैडमियम, हैवी मेटल, मर्क्यूरी जैसी चीजें होती है। रेनल पेशेंट शुड नॉट कंज्यूम ऑल दिस ड्रग विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द फिजिशियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट ये आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है ना, a lot of people are turning towards this kind of methodology. Yeah,
See, again, like आपने टीवी में भी सुना होगा, we are not against any kind of pathy, but medications, kidney patient में like homeopathic, ayurvedic का medication is not very well defined. Okay. There's no उसके अंदर content कुछ written. भी there is no content written. There's not standardized. So in our nephrological patient, it's very, very important to avoid that, because sometimes rather than doing good, patient end up in doing harm for themselves. So that is just like painkillers, this thing also has to be used very, very carefully. This is a very important message. Right. So I also want to know the relationship of CKD, like chronic kidney disease, with the heart patient. A lot of heart patient does not even know they are CKD. Okay. So again, very important thing. इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिसीज का पेशेंट क्यों मरता है? मोस्ट कॉमन डेथ इज हार्ट फेलियर. ओके. सीकेडी का मैक्सिमम डेथ हार्ट फेलियर के कारण होते हैं. सीकेडी के पेशेंट्स, दे आर 2 times to 5 times more prone to have heart failure, because CKD usually never comes alone. CKD वालों को associated blood pressure, associated diabetes, chronically volume overload, accumulation of toxins in the blood रहते हैं, which all causes damage to the heart, and they tend to develop cardiomyopathy. So CKD का अंदर heart failure is very, very common. Most common of death in CKD is due to heart failure. That is the reason कोई भी हमारे CKD के पेशेंट्स होते हैं, उनको associated cardiac checkup and cardiac medicine हम prescribe करते हैं. So CKD के पेशेंट्स को कितना अलर्ट रहना चाहिए for the blood transfusion? So again, जैसा मैंने फर्स्ट में डिस्क्राइब किया, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू मेक ब्लड, हेमोग्लोबिन. नाउ सीकेडी के पेशेंट्स क्रोनिकली अनीमिक होते हैं, ठीक है, उनको हमेशा हेमोग्लोबिन कम होता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूजुअली तब इंडिकेटेड होता है जब सीवियर अनीमिया होता है. सीवियर अनीमिया का मतलब हेमोग्लोबिन 8 से कम होता है, 7.5 या 7 से कम होता है. पहले के जमाने में मे बी 20-25 years बैक ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाज वेरी कॉमन इन सीकेडी पेशेंट. बट नाउअडेज, मतलब काफी सालों से एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बाजार में अवेलेबल है. सो बेसिकली एरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन व्हिच किडनी सीक्रेट्स इंटरनली टू मेक ब्लड. When kidney is damaged, that hormone is not secreted internally, so externally we can give that hormone sub-Q. वो injections आते हैं जो every weekly, 15 days, monthly, depending on the hemoglobin and preparation, we can supplement, and based उस injections की मदद से we can build hemoglobin of the patient. So उसको सिर्फ अलर्ट ही रहना चाहिए कि उसका हेमोग्लोबिन लेवल कितना रहता है. हाँ, अलर्ट में उसको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए. रेगुलर चेकअप हेमोग्लोबिन के लेवल के हिसाब से एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन प्लस आयरन टैबलेट्स एज पर द प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर लेनी चाहिए. ट्राई टू मेंटेन हेमोग्लोबिन बिटवीन 11 to 13, दैट इज द गाइडलाइन, एंड लेस देन इट देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैरीज इज ऑन साइड इफेक्ट. देयर मे बी हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, there is chances of virus like hepatitis C and B, and secondly जो लोगों को ट्रांसप्लांट कराना होता है, if they take repeated blood transfusion, तो उन लोगों में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है जो ट्रांसप्लांट किडनी को डैमेज कर सकती है. इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट रिकमेंडेड. बहुत जरूरत तभी देना है, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ आयरन, विद द हेल्प ऑफ B12 and with the help of erythropoietin injections, we have got good medicines which can definitely help in making the blood. Yes, science has progressed a lot. So, tell me, doctor, अगर किसी को glomerulonephritis है, that is an inflammation of a kidney, so does it lead to kidney failure also in the long run? Okay, so again, a common condition you brought. So we are talking about glomerulonephritis. So basically, first of all, I will say what is acute glomerulonephritis. But you say there is a glomerular inflammation. पेशेंट्स को सडनली सूजन आ जाएगा, यूरिन कम हो जाएगा, पेशाब में लाल खून जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, फेशियल पफिनेस. सो मेनी टाइम्स आप देखते होंगे 6-7 साल के बच्चे होते हैं जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, उनको अर्ली मॉर्निंग आईलिड एनीमिया होगा. अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ GN, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. और मेन स्टे क्या है, यूरिन के अंदर प्रोटीन जाता है. सो हाउ डू वी डायग्नोज? So again, science has progressed a lot. Glomerulonephritis का diagnosis is easy based on kidney biopsy. Kidney is basically made of nephrons. जैसे हमारे सिर पे बाल होते हैं, वैसे हर एक किडनी में 10-10 लाख हेयर लूप जैसे nephrons होते हैं. And in a biopsy, we just pick out one hair loop nephron,
and we see in a microscope and make the diagnosis of glomerulonephritis. जो diagnosis आता है उसके according steroids and there are so many medications which reduces the inflammation which helps in treating GN और उससे हम उसको ठीक कर देते हैं. ऑन अदर हैंड अगर आप उसको अनट्रीटेड रखते हैं, लॉन्ग टर्म में चलता जाता है, नेफ्रॉन्स में डैमेज चलता जाता है, देन डेफिनेटली इवेंचुअली क्रोनिक रेनल डिसीज में वो कन्वर्ट हो जाता है. व्हाट वी कॉल एज क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अगेन वंस इट इज कन्वर्ट, जो भी ग्लोम्स है वो स्क्लेरोस हो गए, बाल हमारे परमानेंट डैमेज हो गए, तो हम उसको कोई भी हिसाब से रीजनरेट नहीं कर सकते. वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट व्हेन वेरी गुड प्रॉमिसिंग रिजल्ट. जीएन का ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है. 90-95% पेशेंट्स 100% क्योर हो जाते हैं. Okay, so there is a lady asking, does it also affect the immunity? I believe yes. Yeah, so definitely kidney is a chronic inflammatory state. जब किडनीज के पेशेंट्स दे आर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस, उन लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, निमोनिया, हमारे सभी किडनी वालों को निमोकोकल पहले से वैक्सीन रिकमेंड करते हैं, हेपेटाइटिस भी वैक्सीन वो करते हैं. किडनी पेशेंट्स आर नॉट एबल टू ईट वेल, उनके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्रोटेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स का प्रोडक्शन कम होता है एंड द इम्यूनिटी इज डेफिनेटली लेस. सो इट अफेक्ट्स इम्यूनिटी एंड दे आर मोर susceptible to get any sort of infections. So hence the reason अभी जो ये COVID-19 pandemic चल रहा है, they are more prone to COVID. Yeah, they are more prone to COVID and the morbidity and mortality is more as compared to normal patients. Right. So how does the birth defects leads to kidney disease? Is there any birth defect that can lead this? Yeah. So there are so many congenital disorders. ठीक है, birth defects or in medical language we say genetic disorders. Congenital disorders. Most common is ADPKD, autosomal dominant polycystic kidney disease, जिसके अंदर क्या होता है कि किडनी बड़ी बड़ी हो जाती है. जैसा मैंने बोला कि किडनी 9 सेंटीमीटर नॉर्मल आदमी की होती है, ADPKD के अंदर 20-25 सेंटीमीटर की हो जाती है एंड देयर आर लॉट ऑफ बबल्स ऑन द किडनीज. दिस इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिसऑर्डर. उसके अंदर इवेंचुअली 30, 40, 50 साल के बाद स्लोली किडनी डैमेज हो जाता है. उसके सिवा IgA नेफ्रोपैथी है, रिफ्लक्स डिसीज है, एल्पोर्ट सिंड्रोम है. देयर आर सो मेनी कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स व्हिच अफेक्ट्स किडनी. यूजुअली बच्चों में होता है ADPKD, यूजुअली अडल्ट में वो होता है. ADPKD के अंदर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है. मदर या फादर को किसी को एक होगा, उनकी फैमिली में आगे किसी को एक होगा, भाई बहन को होगा. सो बेस्ड ऑन दैट एंड सोनोग्राफी वी मेक अ डायग्नोसिस. और अब जेनेटिक टेस्ट इजीली अवेलेबल हो गया है, उसके अंदर हम कंजेनिटल डिसऑर्डर पिकअप कर लेते हैं कि कौन सा हार्मोन्स, एल्पोर्ट सिंड्रोम है कि क्या है जिसके कारण ये किडनी डैमेज हुआ है. Right. So there is a question here. Raffi Keshwani is asking, is the gout directly related to CKD? Okay. So basically what is gout? Gout एक कंडीशन है जो यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर में पैदा होती है. What does uric acid does? Uric acid helps in formation of small stone. उसके स्टोन होके जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं एंड दे गिव राइज टू पेन एंड इन्फ्लेमेशन. जॉइंट एकदम लाल मोटा स्वेलिंग हो जाता है एंड दैट इज वी कॉल एज गाउटी आर्थराइटिस. किडनीज वाले पेशेंट्स के अंदर हाइपर यूरेसीमिया होता है. Just I told regarding creatinine, urea, potassium, phosphorus, just like that uric acid is also impurities. किडनी फेलियर के अंदर हाइपर यूरेसीमिया, यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है और उन लोगों को गाउट होने का चांस ज्यादा होता है. एंड अगेन वी हैव गॉट अ वेरी गुड ड्रग. फेबॉक्सिस्टेट नाम की अच्छी ड्रग्स आती है, एलोप्यूनोन नाम की अच्छी ड्रग आती है. बेस्ड ऑन दैट हम यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं. So these are the parameters which we check in all our kidney patients. They are very much prone to develop gout. Right. So are there any children at risk? अगर उन्हें birth defect नहीं है, then also do we have a section of children who are at risk of it? And what are the screening methods? Yeah. So basically coming to children, one is a congenital disorders. काफी बार there is a condition known as reflux nephropathy. बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर बार यूरिन इन्फेक्शन होना. उसके अंदर there is a wall, जो अपना यूरेथ्रा और यूरेटर होता है, there is a leakage of the wall and there is a reflux of the urine.
यूजुअली ये कंडीशन 3 साल से 5 साल 7 साल तक रहती है, उसके बाद ज्यादातर लोगों में ठीक हो जाती है। जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है उनको यूरेटिक रीइम्प्लांटेशन नाम का ऑपरेशन आता है, दैट इज वन थिंग। उसके सिवा पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल टाइप का डिसऑर्डर होता है बच्चों के अंदर, जिसके अंदर इंफेक्शन होता है। उसके सिवा जो हमने बात की नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन। बच्चों को अचानक से लगेगा स्वेलिंग आ गई है, बच्चों का पेट फूल गया है, हाथ पांव पे सूजन हो गया है, यूरिन टेस्ट कराओ तो उसके अंदर प्रोटीन आएगा। अगेन इट इज अ वेरी गुड ट्रीटेबल कंडीशन। और कंजेनाइटल डिसऑर्डर जो हमने बात की, एल्पोर्ट सिंड्रोम एक्सेट्रा, वो भी बच्चों में आ सकते हैं। रेनल फेलियर हो सकता है। सो ऑल दिस कंडीशन कैन अफेक्ट चाइल्ड। अगर बच्चों को, माँ बाप को कुछ भी अब नॉर्मल चीज लगे, फॉर एग्जाम्पल डिलेड माइलस्टोन, बच्चा जब चलना चाहिए चल नहीं पा रहा है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होके चल रहा है, बच्चे का बोन डिसऑर्डर हो रहा है, बच्चा जितना खाना चाहिए उतना खा नहीं पा रहा है, लैक ऑफ ग्रोथ हो रही है, देन डेफिनेटली ये सब also needs to be screened. हाँ 100% यूरिनरी कंट्रोल नहीं आ रहा है, कंटिन्यूस बेड टाइम रात को वेटिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, देन दैट शुड बी सस्पिशियस और यूरिन का टेस्ट और किडनी का टेस्ट करके रूल आउट किडनी डिसीज करना चाहिए। सो ये बेड वेटिंग कितनी एज तक हो तो नॉर्मल है और उससे ज्यादा हो तो यूजुअली anywhere up to 5 to 7 8 is normal, but above that it need to be investigated. Okay. Great. So I also want to know the permanent solution. A lot of people are, seeking and looking for the kidney transplant. Yeah, basically we come regarding इनको किडनी ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया जाता है और कब तक वो प्रिजर्व कर सकते हैं? Okay, so again very common important practical point regarding kidney transplant. कोई भी patient who is having stage 5 CKD is recommended, there are 3 therapies. कोई भी पेशेंट का एक बार परमानेंट किडनी फेलियर हो गया तो उसके पास 3 ऑप्शंस होती है। वन इज किडनी ट्रांसप्लांट, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड इज हेमोडायलिसिस, उसके अंदर हर हफ्ते 2 to 3 टाइम्स पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और डायलिसिस मशीन पे अपना ब्लड फिल्टर कराना पड़ता है। यू विल यूजुअली टेक 4 आवर्स। एंड थर्ड ऑप्शन इज पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसके अंदर एब्डोमेन के अंदर एक प्लास्टिक ट्यूब डाल के वाटर बैग से घर पे ही पेशेंट अपना खुद पेरिटोनियल डायलिसिस करता है। आउट ऑफ दिस 3 ऑप्शंस, बेस्ट ऑप्शन इज रेनल ट्रांसप्लांट। ये तीनों में सबसे बेस्ट रेनल ट्रांसप्लांट है। कोई भी पेशेंट ESRD एंड स्टेज रेनल डिसीज का ट्रांसप्लांट कराता है तो वो काफी हद तक ऑलमोस्ट 90-95% तक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। उसकी एपेटाइट, उसका दिनचर्या, ऑफिस वर्क, एवरीथिंग कैन बी रिज्यूम वेरी वेल। एंड वंस ट्रांसप्लांट देन यूजुअली 10-15 ईयर्स तक इश्यू नहीं आता है। बट पेशेंट्स को मेडिसिन डेफिनेटली लेनी पड़ती है, transplant medicines, but that gives a good quality of life as compared to hemodialysis or peritoneal dialysis. So it's always recommended to go for a renal transplant whenever any patient is having end-stage renal disease. Right. कुछ डोनर के बारे में भी बताइए। लॉट ऑफ पीपल आर नॉट रियली ओपन टू डोनेट देयर किडनी। काफी लोगों को ये लगता है कि 2 किडनी होना भी इम्पोर्टेंट है। So these are some of the myths that you can talk about. Yeah, so again, very good and practical things. So usually we have to explain all our potential donor. Donor को कभी भी कुछ नहीं होता है। डोनर को there has been studies. डोनर का 50-50 साल का, 25-25 साल का फॉलोअप है। इनन्यूमरेबल डोनर्स का, इतने सारे डोनर्स का फॉलोअप है। यूजुअली डोनर डजंट डेवलप एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। भगवान ने हमको एक इस प्रकार की कैपेसिटी दी है कि एक किडनी पे आदमी पूरी जिंदगी अच्छा जी सकता है। सो मेनी टाइम्स पीपल आर बोर्न विद अ सिंगल किडनी। वो लोगों को पूरी जिंदगी पता भी नहीं चलता है। 60-65 ईयर्स पे पेट में दर्द हुआ, सोनोग्राफी कराई, एक किडनी दिखी, दौड़ते दौड़ते है कि मेरी तो एक किडनी है। हम समझाते हैं जब आपका 60 साल निकल गया तो बाकी की उम्र भी निकल जाएगी। सो डोनर को कुछ नहीं होता है। सेकेंडरी, देयर इज अ बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। पेशेंट्स के जितने रिपोर्ट होते हैं उससे ज्यादा डोनर के रिपोर्ट होते हैं। एंड वी मेक अ श्योर दैट डोनर इज 110% फिट टू डोनेट हिज किडनी। और तभी पेशेंट डोनर की किडनी ली जाती है। एंड जस्ट रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसा डोनर है, यू कैन जो पेशेंट्स ऑलरेडी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं उनके डोनर से मिलवा सकते हैं, एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। डोनर यूजुअली डजंट डेवलप एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, सो सेफली डोनेशन कैन बी डन।
एंड गाइज जस्ट वन मोर थिंग, एक जनरल बात है, सभी लोगों को ज्यादातर पता होता है, बट सी अगेन, आपकी अगर दोनों किडनी हेल्दी है तो एक से ही आपकी जिंदगी निकल जाएगी. सो फील हेल्प समवन टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली. तो ट्राई कि अगर आप डोनेशन की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे पाए. लॉट ऑफ अस लव आवर ओन ऑर्गन, सो वो डोनेट वाली बातें जल्दी नहीं आती हैं. But there are a lot of people right now looking forward to the donors. Yes. And एक ऑप्शन है, एक है कैडावर डोनर. एंड सूरत इज लाइक वेरी एक्टिव इन कैडावर डोनर. जो पेशेंट्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के ब्रेन डेड होते हैं उनको उनकी भी किडनीज डोनेट की जा सकती है. और सूरत के अंदर काफी कैडावर डोनर चलता है. Yes. So, is there anywhere where we can register, पहले से if we are open to donation और शायद कोई seek कर रहा है तो they can contact us, if you can give the information. Yeah, so basically we are talking about the registration for getting kidney or for donating kidney? Donating. So basically there is a donor card. ठीक है, हमको पहले से भर के रखना है. और there are institutions which can register kidney donation. Basically there are two type. Let me clarify this thing. There are two type of donation. One is live donation. ठीक है, अपना लव वन को, फॉर एग्जांपल हस्बैंड को किडनी फेलियर होगा तो वाइफ किडनी डोनेट करेगी, या सन को किडनी फेलियर होगा तो मदर या फादर डोनेट करेंगे. दैट वी कॉल एज लाइव रिलेटेड रेनल ट्रांसप्लांट, लाइव डोनर. दैट इज वन कॉन्सेप्ट. तो उसके लिए आपको जाना है, इंस्टीट्यूशन में जाना है, सब चेकअप करना है, लाइव डोनर करना है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना, हो गया. सेकेंड थिंग इज कैडावर डोनर. कैडावर डोनर अकर्स इन स्पेसिफिक कंडीशन व्हेन पर्सन इज ब्रेन डेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, ICH हुआ, माथे पे चोट लगी, ब्रेन डेड हो गया, बट हार्ट और वो सब पंपिंग है. सो दैट इज द टाइम इन विच वी कैन डू कैडावरिक डोनर. उसके लिए पेशेंट ने पहले से कैडावरिक डोनर का कार्ड भर के रखा है तो तुरंत उनके सगे संबंधी कांटेक्ट कर सकते हैं. जो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सूरत के अंदर डोनेट लाइफ है, डॉक्टर मिस्टर नीलेश मंडलावाला की, हु इज वेरी वेरी एक्टिव इन. तो इमीडिएटली टीम कम्स फ्रॉम IKD अहमदाबाद एंड दे यूजुअली हार्वेस्ट द ऑर्गन. वो पेशेंट्स ब्रेन डेड के किडनीज निकाल के लेके जाते हैं. दे इम्प्लांट किडनीज टू द कंसर्न जो भी वेटिंग लिस्ट में रहता है पेशेंट, उसको. दैट इज वी कॉल एज कैडावर डोनर. सो दिस आर द टू टाइप ऑफ डोनेशन. Right. So, what are the criteria for matching the donor and the receiver? So again, the criteria for donor to recipients is a big list of criteria. We start from the blood group. Okay, सबसे पहले blood group देखा जाता है. आजकल across the blood group transplant भी होता है, बस blood group transplant is more preferable. उसके बाद सब basic reports होती है, कंप्लीट बॉडी चेकअप, सब सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, नेफ्रोलॉजिकल सिस्टम, GI सिस्टम एक्सेट्रा. उसके बाद थर्ड स्टेज के ऊपर CT स्कैन होता है डोनर का, जिसके अंदर किडनीज, GFR देखा जाता है, DTPA स्कैन देखा जाता है. और लास्ट स्टेज के अंदर HLA टेस्टिंग होता है, जिसके अंदर पेशेंट और डोनर्स के अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडीज तो नहीं है पेशेंट के अंदर जो डोनर की किडनी पे रिएक्ट करेगी. जैसा मैंने बोला कि रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को नहीं देना चाहिए, अदरवाइज पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज आ जाती है. अगर जो डोनेट करने वाला है उसके अगेंस्ट पहले से पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी आ गई तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन आर मोर. सो दिस वी कॉल एज HLA टैपिंग एंड क्रॉस मैच. So there are battery of investigation. Stage 1 starting from blood group and up to HLA matching and cross match. वो सब reports करनी पड़ती है. And at the end of final report ही decide होता है कि ये donate कर सकता है, patient kidney ले सकता है कि नहीं. Okay. This was great information from your side, sir. So lastly, I just want to know what should people be doing to take care of their kidney and keep them healthy. ओके, सो अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. जनरल पब्लिक को क्या करना चाहिए जो अपनी किडनी हेल्दी रखे? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर डाइट. अगेन अ हेल्दी डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओबेसिटी पर से इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर किडनी डिसीज. जो भी इंसान का BMI ज्यादा होता है उसको किडनी डिसऑर्डर डेवलप होने का चांस रहता है. वाटर इंटेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल पर्सन इज रिकमेंडेड टू ड्रिंक एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे. उससे आप किडनी स्टोन्स होने का प्रिवेंट कर सकते हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने को प्रिवेंट कर सकते हो. सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट. जो भी डायबिटीज ब्लड प्रेशर वाले हैं, सॉल्ट शुड बी
लेस Less. अवॉइडेंस ऑफ पेन किलर, जो आपने शुरू में बात की, ऑफ एंड ऑन ओवर द काउंटर इंपॉर्टेंट ड्रग्स, वो सब अवॉइड करें ताकि उनसे किडनी डैमेज ना हो। सबसे ज्यादा किडनी डैमेज डायबिटीज वालों को होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है डायबिटीज वालों को, डायबिटीज शुड बी केप्ट अंडर गुड कंट्रोल। उनका HbA1c नाम का रिपोर्ट लेस देन इक्वल टू 7 रखना चाहिए। सभी डायबिटीज वालों को किडनी डैमेज नहीं होती है, जो लोग अपना शुगर कंट्रोल नहीं रखते उनको डैमेज होती है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर, गोल ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 140/80। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम बीपी चेक करते हैं, बीपी 160/80 होता है। मैं बोलता हूँ अंकल आपका बीपी ज्यादा है, तो मेरा बीपी तो सालों से इतना ही रहता है। सो बेसिकली दे एक्सेप्ट दैट। सो दैट इज द अवेयरनेस। हमको वो अवेयरनेस ला रही है कि नहीं, अगर आपका बीपी इतना रहेगा तो 5 साल के बाद किडनी डैमेज हो जाएगी, आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। सो ट्राई टू कीप बीपी अंडर गुड कंट्रोल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जनरल बॉडी चेकअप स्क्रीनिंग। जैसे हमने बात किया कि किडनी साइलेंट किलर है, तो जल्दी से किडनी के सिम्टम्स नहीं आते। तो जो भी हाई रिस्क पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट का मतलब जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको रेनल स्टोन्स है, इम्यूनोसप्रेस्ड है, बार बार यूरिन में इंफेक्शन होता है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, तो वो सब लोगों को साल में एक बार जनरल बॉडी चेकअप, किडनी चेकअप जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? वेरी चीप, इजीली अवेलेबल टेस्ट, यूरिन रूटीन माइक्रो एंड सीरम क्रेटिनिन। वो 2 टेस्ट इजीली, सस्ता, सब जगह अवेलेबल है। यूरिन के अंदर प्रोटीन जा रहा है डायबिटीज ब्लड, तो दैट इज द फर्स्ट साइन कि उसको किडनी डैमेज चालू हो गया है। सो एटलीस्ट वो टाइम पे मेडिकल अटेंशन सीख कर ले, सो वी कैन प्रिवेंट फर्दर डैमेज। ठीक है। उसी तरीके से ब्लड प्रेशर वाले को यूरिन आयरन और क्रेटिनिन, तो ये चीज साल में एक बार जरूर करवानी चाहिए। ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू हैव अ गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एंड टू हैव अ ईयरली चेकअप अपार्ट फ्रॉम और अदर्स, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, गुड एक्सरसाइज, ये सब इंपॉर्टेंट है। दैट विल हेल्प इन मेंटेनिंग गुड किडनी फंक्शंस। राइट। सो आपने जो इतनी बताया बातें, केयर लेनी चाहिए, उससे मुझे 2 क्वेश्चन याद आए। वंस यू सेड कि सॉल्ट लो लेना चाहिए, kidney patient is always advised to use salt, but nowadays there are so many salt, sodium replacements are there. So how much do you endorse that, and you think how it is safe? Again, very good and practical question. So you should never use salt replacement. So what is low salt or low NAD diet? That is potassium chloride. What is normal salt? Normal salt is sodium chloride. So kidney patients, they are already having tendency of high potassium. हम अपने किडनी पेशेंट्स को बोलते हैं आपको फ्रूट्स, फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें आपको नहीं लेनी है। अगर आप सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड ले रहे हो, देन दैट पुट यू मोर एट रिस्क। सो ये कोई भी सॉल्ट सप्लीमेंट, लोना सॉल्ट, सिंधिया सॉल्ट, किडनी वालों में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। इनफैक्ट इट इज नॉट रिकमेंडेड, पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। हाँ, लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग नाउ डेज, बिकॉज हम इंफॉर्मेशन से इतनी देते हैं कि आप सॉल्ट कम यूज करिए या ना यूज करिए। वी डोंट फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन, डोंट यूज द सॉल्ट लाइट और द सॉल्ट अल्टरनेटिव। सो आई हैव पर्सनली एनकाउंटर्ड वन ऑफ द पेशेंट यूजिंग द पोटेशियम क्लोराइड, बिकॉज और इंडियन टेंडेंसी होती है ना, हम रेगुलर फॉलोअप्स नहीं रखते डॉक्टर के साथ, जब प्रॉब्लम होगी तब जाएंगे। That is the reason diet counseling is very very important for our renal patients. Usually most of the nephrologists including me, हम लोग एक डाइट का चार्ट रखते हैं जिसके अंदर ये बेसिक सभी इंफॉर्मेशन होती है कि पेन किलर्स नहीं खाना है, लो सोल्ट पोटेशियम क्लोराइड वाला नहीं खाना, ये सब नहीं खाना। सो एटलीस्ट कोई भी पेशेंट एक बार वो पढ़ लेगा, सो बेसिक कॉन्सेप्ट उनको वो पता चल जाएगा। राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर गुड टाइम, had so much of information. There is one question coming, so I'll just take that. So this fellow is asking, he is into fitness, but more on a personal level. So he wants to know the adverse effect of whey protein shakes and mass gainers on kidney. I think he is into bodybuilding, so he's taking the mass gainer and the whey protein that has the creatinine also added. Yeah.
सो अगेन नॉर्मल पेशेंट, अगर आप बिल्कुल फिट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन डेफिनेटली दिस प्रोटीन एंड दिस थिंग कैन बी एक्सेप्टेड, वो किडनीज आपकी टॉलरेट कर लेगी. बट जैसे मैंने बताया था, हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं या थोड़े 45 या 50 के अबाव होते हैं या अंडरलाइन डायबिटीज या हाइपरटेंशन होता है, देन सच हाई प्रोटीन्स आर यूजुअली नॉट टॉलरेटेड बाय द किडनीज और उनका वो क्रिएटिन बढ़ने का चांस रहता है. सो in our patients or prone patients, we usually avoid taking any sort of healthy or heavy protein supplements. But if you are totally healthy, आपको कोई problem नहीं है, you can take. Then there is no issue. तो kidneys usually tolerate. Just like लोना salt भी है, normal आदमी खाएगा तो उसको problem नहीं है, because kidneys are fine enough. They will adjust potassium. वो potassium urine के through excrete कर देगी. But damaged kidneys won't be able to excrete that potassium out of body. So dietary recommendation is different for kidney patient and healthy patient. Yes, yes, yes. Thank you so much for the wonderful information and clearing all the myths and doubts. So friends, any one of you wants to consult Dr. Siddharth Jain, he has his private practice at Zenon, opposite to Unique Hospital. He specializes not only in diagnosis and treatment of kidney related diseases, but he also specializes in a transplant, the dialysis, and kidney biopsy, and everything related to your nephro. So, sir, before we end the session, one last message from you. So again, main message is that you should have a healthy lifestyle, drink lot of water, avoid salts and over-the-counter drugs, and diabetics and hypertensive. Please keep diabetes and blood pressure under good control and get yearly body checkup and prevent your kidneys, keep your kidneys safe. Thanks a lot. This 1 hour was really important, I believe, because like we started, कि सबको अपने हार्ट हेल्थ की ज्यादा फिक्र होती है. किडनी इज समथिंग जो शायद हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक फेल नहीं होती या डैमेज नहीं होती अवॉइड तो नहीं कह सकते मगर कभी ध्यान ही नहीं देते. So this is I think going to bring a lot of awareness. It was really informative. Thank you very much for your good time, sir. Okay. Thanks a lot. So sorry for that initial glitches, technical glitches, but I think that happens. Every one of us are on the understanding technical glitches. That's all. Yeah. Thank you so much. So friends, let's have a big thank you for sir for his wonderful time. Thank you. Thank you. So I'm ending the session. Yeah, thank you. So any one of you wants to see किसी ने आगे में से join किया है something, I am saving this on my IGTV. Anyone can see the whole session and have all the information. You can also put any of your questions जो आपने पूछने से miss हो गए हैं in the comment box. I will text sir and he will surely answer this. Definitely, sure. Definitely. Thank you so much, sir. Okay.